Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in standard 10th mathematics subject, chapter number 3. The name of the chapter circles. So, first of all, I will give you the basic concepts. So, introduction. In class 9, you have studied that the circle is a collection of all points in a plane which are at constant distance यानी रेडियस एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द फिक्स पॉइंट यानी सेंटर होता है. यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द टर्म रेडियस, डायमीटर, chord, arc, sector and segments related to the circle. Now consider the three possibilities when a line and the circle are given in the plane. Okay, so this is the first one. This is circle और ये एक लाइन है, वो क्या है, आउटसाइड है. ओके, तो क्या है, द लाइन पी क्यू एंड द गिवन सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, यानी वो एक कॉमन पॉइंट कोई नहीं, कोई टच नहीं होता है, दैट मीन्स वो आउटसाइड है. इन केस पी क्यू इज कॉल्ड द नॉन इंटरजेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, यानी ये जो पी क्यू है वो इंटरजेक्ट नहीं रही है कोई भी पॉइंट पर इंटरजेक्ट, यानी इसको नॉन इंटरजेक्टिंग लाइन कहते हैं. क्या बोलते हैं, नॉन इंटरजेक्टिंग. नाउ सी द सेकंड वन. तो सेकंड में क्या है, पी क्यू सर्कल है, उसमें ए बी क्या है, उसको इंटरजेक्ट हो रही है. ओके, तो इन फिगर 2 द लाइन पी क्यू एंड गिवन सर्कल हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन कॉमन. इन दिस केस लाइन पी क्यू इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल. क्या बनेंगे, सेकंड. क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट पर टच होती है. अभी थर्ड में देखो, ओनली 1 पॉइंट पर, सर्कल को एक पॉइंट पे टच होती है, उसको बोलते हैं टेंजेंट. तो इन फिगर 3 देर इज ओनली 1 पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड द गिवन सर्कल. इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल. नाउ टेंजेंट टू अ सर्कल डेफिनेशन. ओके, तो द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन इन द प्लेन of the circle that interjects the circle at only one point. ये एक पॉइंट पे टच होती है. The word tangent comes from Latin word tangere which means to touch and was introduced by the Danish mathematician Thomas Fanicke in 1583. The point A at which tangent PQ touches the circle is called the point of contact. This radius through point of the contact A is usually called a normal to the circle at point A. There is only one tangent at the point of the circle. As there are infinitely many points on the circle, a circle can have infinitely many tangents. तो एक सर्कल बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट है, थ्रू अ पॉइंट लाइंग इन द इंटरजेक्ट ऑफ अ सर्कल we cannot have a tangent to the circle. Through a point lying in the exterior of the circle, we will have exactly two tangent to the circle. The tangent to a circle is a special case of the second, when the two end point of its corresponding chord coincide. There cannot be more than two tangent parallel to given second. Actually, there are exactly two tangents parallel to a given second. Now 10.1. The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Now exercise 10.1. How many tangents can be circle have? तो जो सर्कल में से कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो अ सर्कल कैन हैव इन्फिनेटली मेनी टेंजेंट, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स equidistant from the given point, and through every point on the circle there is a tangent to the circle. Hence a circle can have infinitely many tangents. Fill in the blanks. A tangent to circle interjects it is with only one point. A tangent to circle interjects it in only one point. Next, a line interjection circle in 2 points, it is called secant. The circle can have two parallel tangent parallel to secant at the most. The common point of the tangent to a circle and circle is called the point of contact. A tangent PQ, देखो यहाँ पे समझे PQ at the point P of a circle
और रेडियस ऑफ 5 मीटर, रेडियस कितनी है 5 मीटर, अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ये ओ सेंटर है, एट द पॉइंट क्यू, सो दैट क्यू आर कितना दिया है, सॉरी ओ क्यू कितना दिया है 12, देन पी क्यू इज वॉट, तो पी क्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है 12, 13, 8.5 अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। नाउ सी, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, पी इज अ 9 एंगल थ्योरम 10.1 के हिसाब, तो ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस ओ पी से पाइथागोरस थ्योरम, तो 12 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर, गिवन रेडियस 5 मीटर, 144 minus 25 is equal to PQ square. PQ square is 119, तो PQ is under root 119 centimeter. So hence the correct option is D, under root 119. Now see the second one. Draw a circle and two lines parallel to the given line such that one is tangent and the other is secant to the circle. तो यहाँ पर ये एक L लाइन है, तो उसमें दो पैरेलल लाइन बनानी है, एक हमें टेंजेंट बनाना है और एक बनाना है सेकेंड। Okay, so here L is a given line and M and N are the line parallel to L. L के M और N लाइन क्या कि पैरेलल बने, उसमें एक टेंजेंट, तो M जो लाइन इज द टेंजेंट टू द गिवन सर्कल टचिंग द सर्कल एट द पॉइंट P, और जो लाइन N इज अ सेकेंड ऑफ द गिवन सर्कल इंटरजेक्शन सर्कल एट द 2 पॉइंट A और B। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो है आपका 10.1 ये कंप्लीट होता है। नाउ दूसरे जो कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ पर हाँ 10.2 देख लो, 10.2 इसमें पहले MCQ दिए कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज अ सर्कल 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर 25, देन रेडियस व्हाट। तो हमें एक टेंजेंट दिया है, ओके, सर्कल से उसका डिस्टेंस 24 है, ओके, डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम सेंटर से इसका डिस्टेंस 25, तो रेडियस फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट बी द सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ बनाना पड़ेगा आपको, तो पता चलेगा कि ये P यहाँ पर T और Q, ये P और Q का डिस्टेंस 25, यहाँ से डिस्टेंस T और Q का 24, तो हमें ये रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल हो गया अपना PTQ, उसमें T क्या हो जाएगा 90 एंगल, तो ट्राइंगल PTQT 90 एंगल थ्योरम 10.1 के अंगल PT इज इक्वल टू अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस TQ स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। तो PT इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 625 माइनस 576 उसका होगा अंडर रूट 49 का PT का होता है 7, तो हमारा जो रेडियस है वो कितना हो गया 7, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज A 7 सेंटीमीटर। नाउ सी द इन द गिवन फिगर, एक फिगर दी है, इसमें ये P T और Q, ये P और T दोनों क्या है टेंजेंट है, और T क्या एक आउटसाइडर पॉइंट है, तो इससे ये जो एंगल है वो कितना बनेगा 110। अगर ये 110 है तो उसके सामने वाला जो एंगल है वो ऑलवेज कितना बनता है, उससे आधा बनता है। ओके, देख लेते हैं हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करने को बोला है। इन द गिवन फिगर द TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल विथ अ सेंटर O, सो दैट यहाँ पर POQ 110 दिया है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, PTQ इज इक्वल टू, तो हेंस द क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर हो गया POQT। ओके, इसमें एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, ये हो गया 360। अभी ये जो टेंजेंट बनते हैं वहाँ पर 90 एंगल, यहाँ हमें ये पूरा वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 90 के एंगल बनते हैं, तो यहाँ पर 90 के एंगल बने, तो ये 90 प्लस 110, 90 प्लस T हमें फाइंड आउट करना, तो 360 थ्योरम 10.1 के हिसाब से 290 प्लस T, तो 360, तो T की वैल्यू हो गई 70, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 70, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज B। नाउ सी, इफ द टेंजेंट PA and PB फ्रॉम द पॉइंट P टू सर्कल विथ अ सेंटर O आर inclined to each other at the point of AT, then POA, okay, यहाँ पर POA is equal to, okay, तो यहाँ पर POA, यहाँ पर O की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान रखो। हेयर APB हमें दे दिया क्या है
ए पी बी, यानी ये पी एंगल दे दिया हमें, कितना के दिया है 80 का। ओके, तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, तो सब जो एंगल्स है ए ओ बी, ओ ए पी, ए पी बी, पी बी यू, ये 360 होता है। यानी बाकी सबकी वैल्यू दी दी, ये टेंजेंट है वो 90 का, इसकी एक की वैल्यू 80 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी तो देख लेते हैं। तो एंगल ए ओ बी प्लस 260 इज इक्वल टू 360, तो एंगल ए ओ बी की कितनी होगी 100। नाउ ओ पी बाइसेक्टर, ओ पी क्या है बाइसेक्टर, तो ए ओ बी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी आधी, तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी इज इक्वल टू 1/2 ए ओ बी, तो पी ओ बी इज इक्वल टू 100/2, तो कितना होगा 50, तो राइट आंसर है 50। ओके, नाउ प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। ओके, ये दो टेंजेंट है। ओके, तो गिवन एम एन इज अ डायमीटर, एम एन क्या है डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर पी, ए बी सी डी आर टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन ऑफ एम एंड एन। नाउ प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, AB is a tangent to a circle with M as a point of contact and PM is a radius. Now PMA is equal to 90 थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। ओके, फिर से देख लेते, ये AB है, इसमें CD है, ये M और N क्या है टेंजेंट है, P सेंटर है, AB एक लाइन है और CD लाइन है। हमें प्रूव क्या करना है कि AB पैरेलल CD, यानी दोनों पैरेलल है, यानी कहीं से भी देखो इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम, उसको बोलते हैं पैरेलल। नाउ ये टेंजेंट होता है, उसका वैल्यू क्या होती है 90, तो यहाँ पर जो अपना पी एम ए और पी एन ए दोनों की वैल्यू कितनी होगी 90। ओके, नाउ सिमिलर सी डी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ एन एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पी एन इज ऑल्सो रेडियस, तो पी एन और पी एम दोनों क्या हो जाएंगे रेडियस हो जाएंगे। तो डी एन पी 90 थ्योरम 10 के हिसाब से, तो एम एन डी भी क्या होगा 90, तो 1 और 2 के हिसाब से एन एम ए और एन एन डी ये दोनों सेम होंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से दूसरे भी सम दिए, देख लो कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5, यहाँ पर एक दिया है, इसका डिस्टेंस 5 है, इसका 4 है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। ओके, तो ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल विथ सेंटर पी एंड बी इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, सो पी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल पी बी ए, इसमें बी क्या हो गया 19 10.1 के हिसाब से, पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट पी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इन 25 माइनस 16 यानी अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3। ओके फ्रेंड्स, तो सेम थिंग हमें इस तरह से ये दूसरा एक सम में देख लेते हैं कि टू कोसेंट्रिक यानी दो सर्कल है उसमें सेंटर सेम है। ओके, रेडियस 5 एंड 3, तो ये जो बड़ा है उसकी रेडियस यानी 5 और इसकी क्या है 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ये लेंथ हमें कोड की फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 5, तो हमें ये फाइंड आउट करना, तो ये 4 होगा, फाइंड आउट करेगा 4 और 4, यानी ए बी कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा। देख लेते हैं, C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेंटर P एंड रेडियस 5 और 3 रिस्पेक्टिवली। कोड ए बी ऑफ द सर्कल C1 टचेज द सर्कल C2 at M, then P is equal to 5, PM is equal to 3, so angle PMA is equal to 90 and AB is equal to 2 AM. Now PMA angle M is equal to 90, तो AM is equal to under root PA square minus PM square, तो 5 square minus 3 square यानी 25 minus 4 9, तो under root 16 यानी 4, so AB is equal to 2 AM, तो M की वैल्यू 4, तो 2 multiply 4 यानी कितना हो गया 8। थस the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle is 8। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से बाकी जो समय आपको करने हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका जो 10.2 है यहाँ पर कंप्लीट होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।